Good afternoon, Siddhi. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Right? Your voice is not. Maybe you mute. Can you unmute yourself? Right? Still not. Wait. I will do something here. Okay. Right now you check. Now, sir, am I Yeah. audible? Right. You are now audible. Vandana, very good afternoon. Are you getting my voice? Can you on your camera as well? Vandana, Sir, can you on your camera? We'll do interview today. Okay, both of you. Okay. So I will ask question one by one to both of you. I hope you go through interviews, right? Interview questions. Last slide. Okay, Vandana, Siddhi, yes, you sir. go, and I hope you go through recordings as well. Yeah. Okay. Okay. So this is not new for you. Already this material is ready. So I will ask you one question to Vandana. Okay. Tell me about yourself. Myself, Yes, you can answer. qualification Bachelor of Science. I Hmm? qualified Allahabad University. Hmm? Then you have to tell about your family as well, right? Hobbies, your any kind of the experience. I'm not getting your voice, Vandana. I'm not getting your voice. सर वॉइस नहीं आ रही थी आपके. हाँ, you अभी voice आ रही है मेरी आपको? Are you getting my voice, right? Your connection is disrupted. I think you check your connection, Vandana. Okay, you check your connection. I ask questions to Siddhi. Siddhi, you tell me about yourself. So I'm a final year B Pharmacy student. I'm currently pursuing pharmacy from bachelor's from Dr. L.H. Hiranandani College of Pharmacy in Mumbai. My father is a cop and I have an elder brother. And my internships include I've done internship at Medbound, uh, which is a me- uh, which is a platform wherein medical professionals put their ideas and shares valuable content. So I work with medical professionals across the globe and share valuable content and application. I've also done internship at Pharma Intelligence Academy, wherein I work as a business development intern, wherein I reach out to the colleges and arrange webinars and also assist the students from pharmacy to social media platforms. And my projects include I've done survey on cardiovascular health, and also I've did project on regulatory affairs as a new field for a pharmacy profession, wherein I've interacted with one of the employees of Mayor Organics Private Limited. And yes, my hobbies include I love teaching, and I also I'm a semi-classical dancer. And my course I've done digital marketing course from Indian Shala and also from a pharma marketing course from Global Pharma. I think it should be. It is too long right now. Okay, it should be short. Okay, Okay. within half a minute, you have to cover your. Tell me about yourself. Okay, and first of all, you have to appreciate this organization. Thank you for giving me the opportunity for the post of this. So, first of all, you have to tell that particular interviewer that it is really impossible to introduce myself in very short period of time. But yes, I will definitely try to include my achievements and every background in this. So, myself, you can start, right? Yeah.
Okay, so why I'm telling this, because this is something different. Okay, it seems like you are more prepared student. Okay, it is not an ordinary. And in the pharma marketing, each and every time you should be different from others in the thought way, and also you have to develop yourself, so that if your that first question is the most important, this question will definitely ask you in any kind of the interview. Okay, so that is why the answer should be as that is, maybe you have to include some things in that answer. Okay, so that the first impression will be more accurate. You take control of that interview. I hope you understand. So I should not include about the internships and courses, sir. Like only. You can include whether it is like you have to say that you are proactive. You are from Okay. the, you are really interested about the any kind of the pharmaceutical, like it is, if it is reasonable with the pharma marketing, you can tell. Okay, you can tell. Otherwise, if you are interested in regulatories, clinical research as well, production, then it is not good that you are a viable, like your interest is not focused, right? So you should tell the things which are resemble with the pharma marketing. Okay, both of you understand? Okay, so Vandana, can you tell about yourself? My name is Vandana Yadav. I Okay. qualification Bachelor of Science, Allahabad University from UP. I live in Mira Road, Mumbai, Maharashtra. I belong to UP. My father name is Tribhuwan Nath Yadav. My father is dentist department in government hospital, KM Hospital, Mumbai. My mother is housewife. So you also need to tell them that first, including, as Siddhi said, that you completed this course, right? I completed, before conducting this interview, I conducted certificate course in pharma marketing from Global Pharma Academy. Okay, so that they will ask you what kind of things you learn. Okay, in the resume. Okay, in the resume you have to include the things what we learn. Okay, from the first, like what are the topics you covered in the resume. Can do you have your, both of you, your resume you have with us? Yes, yes, sir. Okay. Uh, can you send on WhatsApp, on our group, or personal WhatsApp me right now? Yes. I will share you how to exactly write it. Okay. Because this is important. Vandana, you have your resume. No, sir. Now I am now completed BSc, sir. I am 21 years completed. Now You are I not am preparing your result. resume, right? No, sir. You have to prepare your resume, because this is most important. If, because resume is not in, okay, Siddhi, I got your resume. Your resume played very important role I know, during sir. your interview. This is your absence part or your presence part. If it Yes, is sir. like professional, it will definitely impact your personality. Means that is plus point for yourself. Okay, Siddhi, I will share your resume. Okay, okay. Both of you saw this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, I will share one of the resume with me. Okay, and so that you get some of the idea, because I also mentioned some of the course that is for resume build-up also there. Okay, so maybe that will be helpful for you as well. Okay. Okay, that resume. Everyone saw this? Both of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay. See how this resume is. Okay. That is two color combination should be used. Yeah, that is also good. Your Siddhi resume is also okay. But see, Siddhi, white and black, it is common things, right? It should looks like professional right now. Many times that resume is very good. Okay. Uh, that things need to be included. Career objective, academic background, okay, projects and seminar, what kind of project, what kind of seminars, technical skills, if you have technical skills not needed in pharma marketing, but if you have, you can here include experience, certificate courses. Okay, in certificate courses, see, we are providing one certificate course in pharmacovigilance,
and we are completing these things. Okay, completing introductions to drug safety, whatever these things. So you see acquired skills and knowledge in certificate course in our pharma marketing, and you write all those things like all these topics we covered till now. Okay, so you write, and bullet points should be there. Okay, then co-curriculum activities means if you are participating anywhere in your like free webinar as well, or any other activity you are doing out of the pharma industry as well, you can include within the pharma industry, like paper presentation, any free webinar, any kind of the campus drive, or any kind of the activity you are doing. Okay, so likewise you have to include here. And then at the same time, here most importantly, key strength. What is your key strength? These are the key strengths you need to have in your pharma marketing. Then area of interest. Now your area of interest should be what? Area of interest should be what we Siddhi, what you wrote. I will just check it out. Sir, I haven't written. What? So I haven't written up area of interest. You have to write. Why you don't write? You have to check. Okay. Internship. New application. Okay, you write here internships. Okay. Internships made bound. Education courses. You can say here curriculum activities. Okay, it is internship. You can how many period you have been there in implant trainee, medbound? Medbound 3 months, and pharma intelligence 2 months, and implant training was an online training wherein there was continuous 1 week lessons training. Even you can write here is as an experience, right? Whereas Medbound and pharma intelligence. Yeah, that will see here you can write curriculum activity in implant training, and that should be the experience. And you can write here, like I will share this, right? That if you are experienced, then here 11 month or 3 month of experience as whatever your designation should be, that. Okay. And at your institute, and you can also here write here the role of your, what role exactly you playing, and on which duration you are there. So both of these should be included there, so that he will definitely impactful, because experience candidate needed. You are not a fresher right now. You are complete. At least you have some kind of the knowledge, and you completed something skill. Okay. Okay. Then skills is there. Then area of interest, your language known, you write. Not written language known. Okay. Extra curriculum activity should be there. Volunteer, what is that? Volunteer RX So, pharmacy. pharmacy is an intercollegiate festival of all pharmacy colleges of Mumbai. So therein I was a leader. So why should you don't write in brief? Okay, how can we learn that? Volunteer RX pharmacy 2019. You should write here when you do this, when you whom industry conducted this, and in which duration you write this. You done this, right? What is that? Head, scout, and guide. Hello, sir. What is this? Head, scout, and guide. So head scouting is in a school program. Is in Scout and Guide is an organization wherein you actually arrange programs for school students. So in my school days, I was head of my school. I was representing my school for 3 consecutive years. I represented my school in that for that. Okay. So you consider that third person reading your resume. Okay, and he saw that volunteer RS pharmacy head squad guide for 3 years. What he exactly get the idea? Maybe he will he will think wrong way as well. Okay, you have to write it in brief, at least 1 or 2 sentence. What your role? Okay, participated in various sport competition. What is competition? Various means how many, and what exactly is your area of interest, right? That should be written, right? Okay, sir.
That should be in completed resume. Okay, yeah, because see, first of all, they will focuses on the projects. Okay, so the Phoenix Hospital survey on cardio, when this completed and in which hospital and which area and what you learn there, that should be included, and here as well in Mayor Organics. Okay, so they will ask first on the project, then after they are checking your area of interest, any courses conducted. So that will impact it. Okay, because that if you write like that ways, if see here some of the bold points should be there. See, this is the bold points. If you are conducting anything new, I mean any kind of the achievement is there, you should write here. Okay, yeah. Vandana, are you also got this? Yes, sir. Right, this is important. I think Yes, sir. you should aware about this. And see here, if you have any alternative numbers, Siddhi, you can also write here. And your photo should be there. Why you don't post your photo? Actually, sir, I don't have like a photo with blazer, so I'm waiting for that. I You haven't should taken. have, because many times you have to submit your resume in as online. Okay, so HR should know that you are able to do this job, and the photo should be there, that they will get an idea. Right, photo should be there, and in photo, that here address should be there, email ID should be there, contact number should be there. Okay, and references are also there. Okay, you can check your principal. Okay, your any guide. Okay, you should write here if you have, otherwise no need. Okay, okay, so both of you got it. Yes, sir. Yes, This sir. I am not sharing in our regular session last time, but I think this is most important. That is why I'm sharing with you, and hope you guys got it. And this will improve your chances of getting selected in your interview. Okay. So first question we covered till now. Tell me about yourself. Then next question. For you, what is job of medical representative? So, Siddhi, are you getting my point? yes. What is job responsibility of medical representative? Okay. So, representative is a person who actually works for the sales of a product of company, who is responsible for the sales of company and who plays very important part. Who follows the company's strategic plannings and reach sales target. Yes, sir. Anything else you need to add? There are very responsibilities. You just few of them you just describe. So, like Okay, I have Vandana, you say? Sorry, sir. Yes, you say roles and responsibilities of medical representative. Rules and MR for MR, sir. Yes. Sir, very important for MR, your responsibility, your job, and sorry, sir. No idea, sir. What happened? so can No I idea. say? Yes, Siddhi, any query? So I'll continue this answer. Okay. Yes. So the daily routine includes first of all visits to doctors, then to analyze about competitor brands, then to create to do POBs, then RCPA, then pre call analysis, and then post call analysis. Very good. Vandana, you got it? Yes, sir. Okay. You have to speak yourself as well, okay? Because this is important. As you aware about this thing, and this will definitely ask you in your any kind of the interview. Okay. Next question for Vandana, you. What is your strength and weakness?
Strength and weakness. Whether it is wrong or right doesn't matter. You just speak. No problem. No one will hear you here. Weakness is communication skill is very weakness. This is your weakness. Communication skill is not proper. See, assume that both of you assume that this is real interview in top MNC, okay, and you accordingly prepare and you just tell me that accordingly. This is the preparation, pre-work. What is the pre-call analysis? Likewise, pre-interview analysis is there here, okay. So you should keep in mind that you are in front of top MNC company HR and you accordingly answer it. Okay, you don't think that, don't say that you are less communication, that is your weakness, though you are definitely rejected at that moment. Yes. We can't do work without communication skill in the pharma marketing. Okay, Yes. that should be your strength, not weakness. Okay, tell me. No idea, sir. Tell me what is your strength and weakness. Me, sir, can Vandana. No interest. Okay. Okay, Siddhi, you said. Okay, so my strength is I'm very interactive. And the convincing ability. I have this convincing ability to convince. Because that's why, because I was selected as a business development intern in Pharma Intelligence Academy, and my weakness is sometimes I get stressed if my work is not properly done, or I get impatient sometimes if my project is not achieving from a time in a time limit. Okay. Okay, so your strength will be, I will share. You need leadership skill, communication skill, then interpersonal skill, okay, then product knowledge, okay. That should be your strength, and your like you can say quick learner as well, okay. Okay, so that should be your strength. Then your weakness should be you are more workaholic, like means you are not considering any time after you getting any project. You just continuously work over there, okay. You can believe anyone, that will be that is also a weakness, okay. Then you are you don't want regret from anyone during your working hours, okay. Maybe you don't considering about your health during your working time. That should be your weakness, because that should be your positive point in your job, okay. So that doesn't impact you, and hence that should be your weakness, okay. You both of you get it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Vandana, can you tell now what is your strength and weakness? Sir, my weakness is I can believe in anybody. First weakness. Strength? My work is not completed, so I strength. No, that is your weakness, right? What is your strength? Positive point in you. You are a quick learner, you have a good communication skill, you are a positive thinker, you have leadership skill, you mix with the people immediately, okay. That should be your strength. Positive thinker, sir. Right? It is Okay. right. Positive thinker. Hard work, you have more patience, okay. You are a quick learner, okay. Got it, Vandana? Yes, sir. Positive thinker and learner. Okay. You should be confident during your interview as well, okay. Whether you should give answer right or wrong, it doesn't matter. Every interviewer want that candidate should be confident, because you Yes, sir. go to in front of the doctor, you should be confident, then many things will go into the positive way, okay. So that is more important. Product knowledge, whether there is not any ideal definition for anything, okay. That should be different from person to person, okay. You should handle
according to your like interpersonal skill, whatever intelligence you have to sell. You have to check them. Okay. Okay. The next is see Siddhi, for you why you choose this company. Hello, Why sir. you choose this company? That is the question. You can say. Okay, Vandana, you say why you choose this company. Answer it. सर फिलहाल मैं सर अभी तो जॉब नहीं कर, कोई कंपनी चूज नहीं कर, मेरा खुद का कंपनी है सर, एकॉर्ड लाइफ मसी का. if see if you are taking any interview, किसी को इंटरव्यू के लिए ले रहे हैं आप, ओके, और इंटरव्यू में आपने किसी को पूछा कि why you choose that company, what you expected आंसर क्या होगा आपके लिए आइडियल कैंडिडेट का? Yes, sir. See, many type of company, Cipla company, Mankind company, Sun Pharma company, which type company, sir? So I like Cipla company and Mankind company. हाँ, लेकिन क्यों? ये क्यों Because it is brand and good companies in India. So I like many people so joined Cipla company and Mankind company. Okay. Sun Pharma company. Okay. ये कंपनी आपको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनका वर्क कल्चर अच्छा है, क्योंकि Yes, sir. ये कंपनी में ग्रोथ आपको अच्छी मिलती है, क्योंकि इनके ब्रांड्स रनिंग है. ओके. Yes, तो sir. आप ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे जिनके ब्रांड रनिंग है, आपका Yeah. स्किल्स ग्रो होगा, Skills grow. पर्सनालिटी ग्रो होगी, एज वेल एज योर सैलरी ग्रोथ. ओके. Growth. Yes, sir. राइट. तो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे. सिद्धि, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर. Sorry, तो मेरा नेट इशू हो गया था, मैं बता रही हूँ. Okay, so I really like the work culture over here, the ethics over here, and I see this as an opportunity to actually to uplift my skills, and this company will provide me a great opportunity to work on myself, as well as to provide my inputs for the development of this company. So I really like to be a part of this company. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वंदना आपके लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड फार्मा एमआर? एमआर और जनरल सेल्स में क्या डिफरेंस है? एक मिनट सर. हेलो. ओके सिद्धि, यू से. In pharmacy, you should have a proper knowledge about the biology, or the human body. Like you should be you should have at least science knowledge, like regarding your body, regarding the systems, basic science knowledge. Wherein in other sales, it depends. Like if you are in real estate, you should have knowledge about that. But in pharmacy, you should be able to deal with doctor, which is very important. He has done MBBS, so you should be able to deal with doctor. That's what is the main difference between pharma sales and other sales. See, here in the pharma sales and in MR, the difference is the customer here. Who is your customer? Okay, doctor. Yes, and doctor is well reputed, well educated person, right? And that may be higher than your qualification as well. Yes. So that is why that is a proper proper job. It is a professional job because your customer is well reputed and in the society, and his image is also good. Okay, so here you that skill should be definitely growing, not like a salesman. Salesman has n number of customer, anything customer, anyone is should be customer here. Okay, maybe there are door-to-door door-to-door marketing is there. Okay, or online marketing is there, offline marketing. Whether how many types of the salesman are, many types of the salesman. But in the pharma, you have only one customer, that is doctor. Okay, so your skill should be grow here, and accordingly you are working there. Okay, so that is why that is the difference, major difference between pharma like MR and salesman. Okay, you got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next question from you, Siddhi. Are you willing to work anywhere in India? Yes, sir.
No any problem with is being a girl? Anything problem? No, there is no as such problem. Like, no, sir. Okay. Okay. Then why you choose pharma marketing? So, pharma marketing is something related to the product study, like how you actually represent your product in front of your customers, and study of market, how you actually develop strategy regarding it, how you actually achieve those targets. So, I'm someone who is interested in, market analysis, and how we can actually uh, uh, how we can actually study about our competitors brand, and how we'll actually make our product stand out. So I'm interested in this. That's why I feel, and since I'm from a pharmacy profession, so I feel like pharma marketing I can choose as my career. Okay. Vandana, you say why you choose pharma marketing? So because sir, I like pharma marketing. I met in many type doctors and knowledge gain. And this- Okay. You now you say how you handle sales pressure, Vandana? so because I don't know about marketing and sales. I have no You as are of the owner now. of one of the company. Okay. So if sale is not happening, so what you do? Anything is there in mind? No sir, I have not joined any. I am new Okay, company. so consider that you are joined as a MR, okay, and company gives you 1 lakh of target per month, and you are Sir. till now that is the day is 15, 16 day, okay, and you, till now you only complete 25,000, okay, so 75,000 is still remain. So what you are doing at that time? How to So, achieve it? sir, companies the product in same time target complete. Then MR. I manager. This one. Okay, Siddhi, you tell. Okay, so first I'll study the market, like where my actually product is selling, and where the product is not at all working. And I will also do RCPA, like what are my competitor brands, like my what instead of my product, what doctors are prescribing. So I'll just this is related to the whole market study. Yeah. Okay, so the basic question is, can you handle the sales pressure? Hmm. Yes. Yes, sir. You can handle it, okay. Okay. Next, what you can do that others can't do? Why we Whom, sir? choose To whom, sir, you're asking? Me or Vandana? to Vandana? Sorry, sir. Why we choose you? Because if you are going considered as a MR in the interview, okay, and the company asking why we choose you? What is the difference in you and other candidate? Okay, what is your answer? Because- Vandana, are you comfortable in English or we can say in Hindi? Yes, sir. ओके सो आप में क्या चीजें डिफरेंट है दूसरे कैंडिडेट से आपको क्यों सिलेक्ट करे इसका आंसर क्या रहेगा आपका सर शायद MR का काम शायद पसंद आए कि दूसरे कैंडिडेट से ये अच्छा कर सकते हैं या टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं जितने दिन में दिया वो बिकॉज अगर पहले वाला पर्सन नहीं कर सकता शायद ये कर सकते हैं न्यू कैंडिडेट मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं जो दूसरी गर्ल या दूसरा बॉय कोई एमआर कर नहीं सकता क्या कर सकते हैं आप सर टारगेट जो हमारा एम मतलब एम जो भी मैनेजर दिया है कि आपका इतना दिन में इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना है वो हार्ड वर्क करके हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके वजह से सर हम उनकी नजरों में रहेंगे कि हाँ ये इससे पहले वाले से ये बेटर है ओके और बस
टारगेट ही एमआर का काम नहीं होता वंदना, एज Yes, यू sir. ऑलरेडी नो, राइट? और भी बहुत सारे जॉब हाँ. रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप वो कैसे हैंडल करेंगे? क्या क्या करेंगे आप जो डिफरेंट होंगे दूसरे से? यस सर, जो हमारा सेल्स रहेगा वो सब करेंगे, और डॉक्टर से, आरसीपीए से मिलना और मैनेजर से बात करना, अच्छे से कॉन्टेक्ट करना उनसे, ओके, सारे काम करेंगे सर. ठीक है. सिद्धि, व्हाट यू से? So I feel like to be a medical representative, the key important role is interaction and how you actually build your relation with the people around you. So I'm someone who is really interactive, who is really communicative. So that is a key point who actually makes me different from others. Like I can I'm very adaptive, and I can actually build relationship with I can present myself, I can present my company in front of anyone. So that is the most important thing of mine, I feel, from which I feel is different from others. Like I'm very interactive. Okay, so both of your answer is good, but your answer should be likewise. We can't predict any other's skills. Okay, I'm not predicting any other. I'm not comparing any other. But for me, I'm very proactive. I definitely I'm very serious regarding my job. Okay, from day one. So I will follow my company strategy as well as I'm growing my skills. Okay, Okay. sales skills, presentation skill, whether it is communication skill, I go through my all product knowledge, and accordingly I will work from day one. Okay, so my company's major motto is doctor conversion and of course target and achievements, and that should be I completed and on the basis of my manager guidance, because manager is there who will guide you. Okay, so you should believe on your manager and he will guide you. He will tell you everything about marketing, how you can do, how you can achieve that kind of the target. Okay, so that should be your answer. You can't compare yourself with any other. First of all, you have to tell, I can't compare anyone else, because everyone is different from different angles. Okay, but from my time, when we come to the my point of view, that I'm proactive, I'm hardworking, as I say, that is my strength, and I will utilize here fully 100% in our organization. Okay, you Okay, got sir. it, you both of you? Yes, Okay, sir. sir. Okay, so next question. What is primary and secondary self? Vandana, you say. Vandana. Wholesales are primary, and retailer and secondary. Exactly. What is RCPA? Vandana. RCPA. Sir, RCPA, retailer and chemistry, prescription and audit. Okay. Then what is pre-call analysis and post-call analysis? Vandana. No, sir, I have no class this time. No, I don't. No. Okay. Siddhi, you say pre-call analysis, post-call. Pre-call analysis, like how many visits we have to do, and No, that is wrong answer. pre-call. See, the answer lies within that terminologies. Pre-call analysis. Pre-call, before call analysis. Before doing any call to the doctor, you have to analyze. Okay, your preparation of your, okay, pre-call. Okay, so calling like which medicines they are prescribing our company, or which brands you are focusing there. Okay, which kind of the demand previously doctor told me about this. Okay, so you have to prepare which gifts or which samples you have to give them during that your call. Okay, so that is called as pre-call analysis. You have to do in the before doctor chamber. Okay, you got it, both of you. Okay, before call, in-depth knowledge, in-depth analysis of that call should be in pre-call analysis. And post-call analysis, what is that, Siddhi? The feedback regarding the product. After call, you have to observe yourself whether it is call is right according to your strategy or not, and which kind of the thing you need to improve in the next call. Got it?
मीन्स अभी आपने कुछ कॉल किया डॉक्टर को और डॉक्टर ने बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं देखा, आप कॉल तो कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डॉक्टर नहीं देखा, इसका मतलब क्या है, आपका डिटेलिंग बहुत ही पुअर है, कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, इंटरेक्शन करें और बात करें, ओके, इससे अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कॉल में एटलीस्ट वो चीजें करनी है, या फिर सैंपल देना है, सैंपल नहीं दे पाए या भूल गए, तो नेक्स्ट कॉल में आपको सैंपल देना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गिफ्ट देना था, नहीं दिया, ठीक है, नेक्स्ट कॉल में देना है। सो दैट इज पोस्ट कॉल एनालिसिस, कॉल होने के बाद जो गलती कॉल में की उसका एनालिसिस करना और नेक्स्ट कॉल में उसको इंप्रूव करना। ओके, बोथ ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. सब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन के आंसर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। Yes, sir. yes sir, yes. ओके, व्हाट इज टेरिटरी? एनीवन? टेरिटरी क्या होती है? Sir, area. बिल्कुल, जिस एरिया में आपको काम करने का बोला है वो जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज टेरिटरी। Is ओके, ब्रांड मैट्रिक्स क्या है? A sequence of brands in a doctor's chamber. बिल्कुल से, जो डॉक्टर्स को क्या ब्रांड्स बताने, इसका जो सीक्वेंस रहता है नंबर 1 2 3 दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड मैट्रिक्स। brand. ओके, विजुअल एड एलबीएल क्या है, कौन बताएगा? Leave वंदना? behind literature. So leave behind literature. यस, वंदना विजुअल एड क्या होता है? No sir, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था सर उस टाइम। वंदना विजुअल एड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर को आप प्रेजेंट करोगे। अभी मेरे पास नहीं है विजुअल एड, बट मैंने एक आपको सर दिस विजुअल टाइम दिस टाइप ब्रोशर, राइट राइट, नहीं नहीं, ब्राउचर नहीं है ये, ब्राउचर नहीं है, ब्रोशर, डिटेल रहती है, एक पूरा ये रहता है, पूरा सेट रहता है, वहां पे हर एक प्रोडक्ट का डिटेल दिया होता है। सर मेडिसिन नेम्स एंड डिटेल्स सेम टाइम। वो तो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर ओके कार्ड है, सर, यस सर, ब्रोशर कार्ड। ठीक है, दिस इज डिफरेंट। ओके, व्हाट इज टीपी? टीपी क्या है वंदना? टूर प्लान, टूर प्लान क्या है ये बताओ, टूर प्लान क्या है वंदना? नो आइडिया सर। आर यू गेटिंग थ्रू ऑल स्लाइड्स? रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, कभी मिस किया तो, या बहुत बेसिक लेवल पे मैंने कम से कम 10 टाइम्स मैंने ये बताया टूर प्लान क्या है। Sir. क्योंकि देखिए, अगर आपने इससे कुछ सीखा नहीं तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ना कि मेरे टाइम का, ना कि आपके टाइम का। So can I answer? Yeah, I just wait. So Vandana, you have to become serious for these things. ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब आप फील्ड में जाते हो एक्चुअली, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले अगर लर्न होती है ना, तो आपका वो 6 महीने का गैप है ना, 6 मंथ में आप ये सारी चीजें सीखती है, तो आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो फ्रॉम डे 1 आपको अच्छी सैलरी और अच्छी कंपनी मिलेगी। इवन आप अगर किसी की कंपनी के ओनर हो तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। आप अगर खुद को नॉलेज नहीं है तो दूसरे को आप कैसे ट्रेन करोगे? इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, आपको टीपी मालूम नहीं, आप दूसरे को बताएंगे कि टीपी बना, तो वो पूछेगा कि टीपी क्या है मैडम, थोड़ा गाइड कीजिए, आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, देन एंड ओनली देन यू कैन टीच एनीवन एल्स, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं तो मैं क्लास भी नहीं ले सकता, मतलब कुछ नॉलेज आपको भी नहीं दे सकता, ठीक है, या आप भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो लाइकवाइज यू हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लीडर हो तो उससे भी और नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सिद्धि, यू से व्हाट इज टीपी? So TP, like where we have to visit daily, like हम लोग को कौन सा एरिया में जाना है, हम लोग को कौन से डॉक्टर से मिलना है, हम लोग को कौन से केमिस्ट से मिलना है, और हमें इफ रिक्वायर हमें होलसेलर से मिलना है, हमें कौन सी जगह जाना है। ठीक है, और डॉक्टर कॉल में क्या रहता है सिद्धि? डॉक्टर लिस्ट जो रहती है आपको, वो डॉक्टर लिस्ट में क्या क्या रहता है? डॉक्टर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन सी दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, देन उनका क्वालिफिकेशन, और यस कैटेगरी, नॉन कोर, कोर, ये क्या रहते हैं? को डॉक्टर्स जो हमें
मार्केट देते हैं 25,000 10,000 से ऊपर तक, और नॉन कोर है वो 4,000 तक देता है, लेस देन। नॉन कोर को विजिट कितनी, डबल विजिट किसको है, सिंगल विजिट किसको है? डबल विजिट कोर डॉक्टर्स को होती है, और सिंगल विजिट इज फॉर नॉन कोर डॉक्टर्स। ग्रेट, ओके। तो ये बताइए, अभी आप वंदना आप बताएगी पीओबी क्या है? पीओबी क्या है वंदना? नो सर, मैंने क्लास नहीं लिया सर, बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी सर, तो ठीक है, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म है। पर्सनल। हाँ ठीक है, इससे क्या आपको पता चलता है? पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, आप बुकिंग कहाँ पे ले सकते हैं? एमआर को बुकिंग लेनी है, कहाँ से लेंगे? रिटेलर को लेंगे, होलसेल को लेंगे, कहाँ पे लेना चाहिए? रिटेलर से। रिटेलर से बुकिंग मतलब रिटेल से क्या करेंगे? ऑर्डर लेंगे। मान लो, ऑर्डर नहीं। हाँ ठीक है, आप क्रोसिन ब्रांड के एमआर है और क्रोसिन किसी रिटेलर को खत्म हो गई है, ठीक है, उसको 10 स्ट्रिप चाहिए, तो वो होलसेल से भी मांगा सकता है, लेकिन आप भी वहां पे विजिट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप सिर्फ एक व्हाइट पेपर से स्टैम्प दीजिए, क्रोसिन का 10 स्ट्रिप लिख लीजिए, मैं होलसेल से जाके ऑर्डर करके वहां पे आपको दे दूंगा। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूर, ओके, आपने ऑर्डर ली होलसेल से और परचेज किया होलसेल से, आपने फिर से रिटेलर को दिया, सो दैट इज ऑल अंडर द पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। ये कब होती है? जब जनरली आप कर नहीं सकते, कंपनी आपको बोलती है एक्स्ट्रा सेल पुश करने के लिए। अब मान लो मैं रिटेलर हूँ, मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं ऑर्डर करूंगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा ऑर्डर, अगर मतलब मेरे कंपनी के ब्रांड ज्यादा होने चाहिए, तब पीओबी होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रिटेलर को पुश करने के लिए पीओबी होती है, जहाँ पे वो ज्यादा मेडिसिन वहां पे रख सकता है। कि रिटेलर क्या बोलता है, रिटेलर एक स्टेप जोन में हमेशा रहता है कि 10 स्ट्रिप जाते हैं ना, 5 से स्ट्रिप रखेंगे, 5-6 स्ट्रिप जैसे जाते हैं, जिस वजह से वो ऑर्डर करेगा। बट आपको क्या करना है, 10 स्ट्रिप जा रहे हैं, एटलीस्ट 20 स्ट्रिप तो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है उस डॉक्टर को पर्टिकुलर टारगेट कितना दिया है, वो कितना लिखना चाहिए, उसके लिए वो रिटेलर को पीओबी करनी होती है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। ओके, बोथ ऑफ यू गॉट इट? यस। अब देखिए, अब कुछ है आपको मालूम है तो बताइए, पीटीआर क्या है, पीटीएस क्या है? प्राइस टू स्टॉकिस्ट एंड प्राइस टू रिटेलर। सीएस क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग रिपोर्ट, ये क्या रहते हैं सिद्धि? सर कितना रिसीविंग स्टॉक था, कितना हम लोग ने सेल किया, और जो बचा है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये बताइए क्रेडिट नोट क्या होती है? क्रेडिट नोट ना, आपको मालूम है क्रेडिट नोट क्या है? नो सर। क्रेडिट नोट मतलब, क्रेडिट नोट इसका मतलब देखिए, अगर रिटेलर के पास कोई भी मेडिसिन एक्सपायर होता है, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद वो क्या करेगा, क्या करेगा? वो फेंक देगा या होलसेल को रिटर्न देगा? होलसेल को रिटर्न कर देते हैं। राइट, होलसेल को रिटर्न दिया, मान लो 100 रुपीज का एमआरपी था किसी प्रोडक्ट का, उसका 80 रुपीज का पीटीआर है, प्राइस टू रिटेल, 80 रुपीज में उसको गिरी थी, वो उसने एक्सपायर होने के बाद होलसेल को रिटर्न दिया। अब होलसेल में क्या होता है कि वो कोई नई स्क्रिप्ट नहीं देता या फिर उसका पैसा रिटर्न नहीं देता, अब उसकी बनती है क्रेडिट नोट। मतलब 80 रुपीज की थी, वो एक्सपायर होने के बाद 10-20 रुपए कुछ कट होते, लाइक 60 रुपीज उसके बच गए, अब 60 रुपए वो दे नहीं देगा, उसकी बनेगी क्रेडिट नोट। अब मान लो क्रेडिट नोट 60 रुपए की बन गई, तो अब क्या करना है, जब नेक्स्ट बिल होता है रिटेलर का, तो उस नेक्स्ट बिल से वो डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, रिटर्न देते हो, तो उस पे वहां पे वॉलेट में रहता है वो पैसा, आप यूज नहीं कर सकते, परचेस से वो डिडक्ट हो जाएगा। लाइकवाइज हियर इन द फार्मा मार्केटिंग वो होती है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। गॉट इट? यस सर। सिद्धि, यू गॉट इट? यू से व्हाट इज क्रेडिट नोट? बताइए क्रेडिट नोट क्या है? कि अगर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायर, कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, तो हम लोग होलसेलर को रिटर्न देते हैं, और हाँ, रिटर्न देते हो, रिटर्न के अगेंस्ट एक नोट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट। अब ये रिटेल एंड होलसेल का, वैसे ही होलसेल क्या करेगा, खुद के पास नहीं रखेगा, वो देगा मैन्युफैक्चरर के पास, तो लाइकवाइज वहां पे होलसेल की भी क्रेडिट नोट होती है मैन्युफैक्चरिंग की।
ओके, सो ये क्रेडिट नोट ऐसे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, लेकिन अभी उल्टा एक्सपायरी में उल्टा होगा, रिटेल से होलसेल, होलसेल से फिर ये कंपनी एक C&F होती है। C&F क्या होती है? एनीवन नोस C&F? कंपनी का मिनी गोडाउन होता है, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटर को, उसका C&F होगा और C&F से डायरेक्ट वो सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। ओके, जैसे कि आपके एरिया में, ठीक है, आप कौन से एरिया से? सिद्धि, मुंबई से, राइट? ओके, तो मुंबई में एक C&F होगा, वो मुंबई के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा। मुंबई का डायरेक्टली वहां पे बिहार में नहीं सेल करेगा, यूपी में नहीं करेगा, इट इज इम्पॉसिबल। इसके लिए वो नेटवर्क बनाती है कंपनी, नेटवर्क मतलब C&F बनाती है, वो C&F को उसी एरिया में सेल करना है, ठीक है, कंपनी का पूरा स्टॉक उसके पास रहेगा, इट इज कॉल्ड अ मिनी गोडाउन। ओके, तो C&F बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट बोथ ऑफ यू? यस। ओके, तो केमिस्ट स्टैम्प क्या रहता है? केमिस्ट स्टैम्प, केमिस्ट स्टैम्प, स्टैम्प केमिस्ट का स्टैम्प। ओके, केमिस्ट का स्टैम्प मतलब क्या है? वहां पे क्या रहेगा? अब मान लो केमिस्ट को ऑर्डर देनी है, पीओबी, पीओबी देनी है, तो आप कैसे लेंगे? या फिर उसे वर्बली बताएंगे और वहां पे होलसेल में जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है होलसेल को कि मेरे पास पीओबी है इस मेडिकल स्टोर की, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? स्टैम्प होगा, उसका स्टैम्प रहेगा, ठीक है। मान लो एक छोटी पीओबी है, मैं एक ऐसा पेज लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ब्लैंक पेज दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर का नाम रहेगा, मेडिकल स्टोर नेम एंड एड्रेस, और यहाँ पे एक मिनट, क्रोसिन की 10 स्ट्रिप चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रोसिन की 10 स्ट्रिप, ये मेरा स्टैंप रहेगा, ये स्टैंप में यहाँ पे मारूंगा। इसका मतलब क्या है? इस मेडिकल की ऑर्डर है 10 स्ट्रिप की, ओके, और वो जाएगा होलसेल के पास, होलसेल देखेगा हाँ इस मेडिकल की है, वो देखेगा कंप्यूटर में इस मेडिकल का नाम, और वहां पे 10 स्ट्रिप का बिल करेगा, हो गया बिल, परचेस का बिल होगा, आपको वो लेना है और फिर रिटेल को देना है। सो ये पीओबी का काम है, बट स्टैंप बहुत जरूरी है। अब स्टैंप कितने तरीके के होते हैं केमिस्ट के? पहला तो एड्रेस का स्टैंप होता है, दूसरा स्टैंप होता है ड्रग लाइसेंस का, तीसरा स्टैंप होता है सप्लाइड बाय का। सप्लाइड बाय का स्टैंप क्यों रहता है? क्योंकि जो नार्कोटिक मेडिसिन है, जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह है ना, वो डबल सेल नहीं होने चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने वो स्टैंप कंपलसरी किया है। मान लो किसी पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं आप, ठीक है, तो स्लीपिंग पिल्स देने के बाद वो पेशेंट डबल भी ले सकता है किसी मेडिकल स्टोर से, ठीक है, 10 टैबलेट दिए, वो 10 लेगा, फिर दूसरे स्टोर में 10 लेगा, फिर इसका मतलब क्या है? साइड इफेक्ट हो जाए उसको। इसके लिए जब आप कोई भी पिल्स देते हो तो वहां पे सप्लाइड बाय का स्टैंप उस प्रिस्क्रिप्शन पे होगा कि मैंने ऑलरेडी दी है, वो किसी भी स्टोर में जाके वो डबल ना ले सके। ओके, सो दैट इज द सप्लाइड बाय का स्टैंप। फिर जीएसटी का अलग से स्टैंप, ठीक है, प्रोप्राइटर का अलग से स्टैंप। सो लाइकवाइज 4-5 स्टैंप रहते हैं। ओके, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, कोई पूछेगा नहीं आपको, बट केमिस्ट के यहाँ पे जाते हैं तब उसको स्टैंप मांगना है, तो वो बोलेगा कि कौन सा स्टैंप दूं, तो आपको बोलना है एड्रेस का स्टैंप दीजिए। ओके, गॉट इट? यस सर। अब कुछ फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज एडीएमई? एडीएमई क्या होती है सिद्धि? Absorption, distribution, elimination, metabolism. Metabolism and elimination. फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? What body does to the drug, like how body reacts to the drug. फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक बता रहे हैं? Sorry, pharmacokinetics. So फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग क्या करता है बॉडी को, और काइनेटिक्स बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, लाइक एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म ना। It is under pharmacokinetic, right? हाँ। Okay, and what is dynamic? Dynamic, what drug does to the body. Drug, what is happens there in pharmacodynamic? Like effect, produces effect. There is receptor bonding, right? हाँ, receptor bonding, yes.
H2 receptor bonding, then release of proteins, and then their action will be goes on. Okay. Action, yes. Okay. आपको यही पूछा जाएगा, इन डेप्थ नहीं पूछेगा कोई, बट फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स यू शुड नो. ओके. अब वंदना आप बताइए, व्हाट इज हाफ लाइफ? What is half-life? No, sir. Siddhi, you know? Yes, sir. The time taken by the drug to reduce to its half of its initial concentration. Blood brain barrier. What is that, Siddhi? It is a network of the blood vessel which avoids entry of the harmful substances into the brain. Okay. What is bioavailability? The amount of drug which is entering into the bloodstream system. What is the bioavailability of systemic route of administration? Systemic 99%, 100%. Right. It is 100%. Okay. Okay. अभी वंदना आप बताइए, how many types of the body systems are there? Human body system. कितना बताइए? I think 9. Okay, बताइए नाम. Circulatory body system and nervous system, urinary system, integumentary system, endocrine system, Endocrine. Okay. endocrine system. Sir, not remember it. Skeletal system. Skeletal system, Digestive system. digestive system. Respiratory system. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Next question. अब कुछ सिचुएशन क्वेश्चन है. ओके. सम सिचुएशन क्वेश्चंस अभी मैं पूछूंगा आपको, क्योंकि ये सिचुएशन पे वैरी होते हैं. कोई भी जब आपका फाइनल इंटरव्यू होता है ना, तब आपके उस इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन. दैट इज कॉल्ड ए सिचुएशनल क्वेश्चन. ओके. So some situational question I will ask you. Okay. First. Okay. वंदना आपको पूछूंगा. एक एग्जांपल है, जैसे कि आप एक एरिया में सिलेक्ट हो गए, वो एरिया बहुत अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, लाइक 10 लाख पर मंथ वो सेल कर रहा है, और आप उस टेरिटरी में जा रहे हैं. सो आप क्या करेंगे वहां पे? इस टेरिटरी को वही सेल बूस्ट करने के लिए 10 लाख से 11 लाख 12 लाख करना है, या फिर वही 10 लाख भी रखना है. ओके. सो ये परफॉर्म टेरिटरी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आप किस तरीके से इसको ग्रो करेंगे? वंदना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? No, sir. देखिए, मैं बताता हूं कि हाउ यू मेंटेन परफॉर्म टेरिटरी. हाउ यू मेंटेन परफॉर्म टेरिटरी मतलब, आप मान लो आपका एरिया कौन सा है? मुंबई. Mirror road. ओके. मुंबई मीरा रोड में आपका मंथली सेल 10 लाख का हो रहा है आपकी कंपनी का. ओके. जिस कंपनी में आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा कि 10 लाख का सेल तो है यहाँ पे. ठीक है, तो आप वैसे ही 10 लाख का सेल कैसे मेंटेन करोगे? ठीक है, क्योंकि टेरिटरी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब कंपनी का बहुत ध्यान रहता है इस टेरिटरी पे, Yes. सेल डाउन ना हो जाए. ठीक है, Yes. तो आप क्या करेंगे जिससे वो सेल वही रह जाए, मतलब इससे बड़ा भी हो या फिर वही मेंटेन हो, तो क्या करना चाहिए? सर, जिस रूटीन पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपका ये सेल्स उसी तरीके से चल रहा है, उससे भी अच्छा थोड़ा करके उसको वहीं पे रख सकते हैं सर, उससे मतलब खराब ना हो. तो क्या करना चाहिए ये बताइए आप. अच्छे से डॉक्टर से मिलना और रिटेलर से मिलना, होलसेल से बात करके अपने सेल्स को अच्छे से प्रोवाइड करना. तो वो डॉक्टर, मान लो अभी आप नए हो, पहले कोई एमआर था तो वो लिख देता था डॉक्टर, मान लो उसका एक पर्सनल कनेक्शन भी रहता है.
तो आप तो नए हो, आपको देख के वो नहीं लिखेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से कम्युनिकेशन करके बात करेंगे, 1 दिन 2 दिन जाएंगे, नहीं करेंगे तो कंटिन्यू हम जाते रहेंगे, तो एक दिन ना एक दिन उनका ध्यान पड़ेगा कि हाँ ये डेली आता है हमारे पास, शायद कुछ अच्छा हो, तो 1 बार 2 बार ट्राई करेंगे सर वो। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, बट प्रैक्टिकली कैसे होगा? प्रैक्टिकली मतलब मान लो आपके लिस्ट में 200 डॉक्टर है, तो 200 के 200 प्रिस्क्राइबर नहीं होते, कोई प्रिस्क्राइबर कम होते, कोई ज्यादा होते, तो आप वो कैसे पता करेंगे कि कौन से डॉक्टर को कितनी एनर्जी देनी है, कौन से डॉक्टर को आउटपुट कैसे मिल रहा है? क्या पहले हमारा था, उसको मालूम था सब, कौन सा डॉक्टर क्या ब्रांड लिख रहा है, सारा लिख रहा है, ओके। तो पहले आपको वो जानना होगा कि वो एमआर किस तरीके से काम करता था, ओके। कौन से एरिया में कौन सा कोर डॉक्टर है, कौन सा नॉन कोर डॉक्टर है, कोर डॉक्टर कितना बिजनेस देता है, नॉन कोर डॉक्टर कितना बिजनेस देता है, ओके। तो पहले आपको क्या करना होगा? सिद्धि आप बताइए थोड़ा इसमें, हाउ यू मेंटेन परफॉर्म टेरिटरी। सर पहले तो मैं फिगर आउट करूंगी कौन सा कोर डॉक्टर्स है, कौन सा नॉन कोर डॉक्टर्स है। तो कोर डॉक्टर्स के पास देखूंगी कोर डॉक्टर्स मेरे को कितना सेल दे रहे हैं, और उनके साथ हाँ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन तो उतना ही रहेगा, प्लस स्कीम्स और गिफ्ट्स कि वो ऐसे मेंटेन करे प्रिस्क्राइब करना मेरे प्रोडक्ट्स को। और नॉन को डॉक्टर्स में मतलब क्या, नॉन को डॉक्टर्स में वहां पे मेनली आता है कि मेरे प्रोडक्ट्स नहीं प्रिस्क्राइब हो रहे, तो मेरे अलावा कौन से ब्रांड के हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, तो वो मैं एनालाइज करूंगी। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्या लिख रहा है, कितना बिजनेस दे रहा है? आरसीपीए केमिस्ट से, बिल्कुल, केमिस्ट से। बिल्कुल आपके एरिया से आपको पता चल जाता है, लेकिन आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रन हो रहा है, आपके टेरिटरी में आपका सेल कितना हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कि मुंबई एरिया में आपको जो एरिया दिया है वहां पे मंथली कितना सेल हुआ, कैसे पता चलेगा? सर रिपोर्ट वर्ड भूल गई मैं। क्लोजिंग, हेलो। क्लोजिंग से पता चलेगा। यस सर, क्लोजिंग रिपोर्ट से। यस, क्लोजिंग से आपको पता चलेगा कि आपके एरिया में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। यस। क्लोजिंग रिपोर्ट कहाँ पे मिलता है आपको, रिटेलर पे या होलसेल पे? वंदना आप बताइए, क्लोजिंग रिपोर्ट कहाँ पे मिलता है? सॉरी सर। क्लोजिंग रिपोर्ट कहाँ पे मिलता है, रिटेल पे या होलसेल पे? रिटेल पे। सिद्धि बताओ। होलसेलर। राइट, होलसेलर पे मिलता है क्लोजिंग रिपोर्ट, रिटेलर पे सिर्फ आपको आरसीबीए मिलेगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो वहां पे पता चलेगा आपको। ओके, तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो आपको पोटेंशियल डॉक्टर ढूंढने हैं उस एरिया के जो ऑलरेडी मेरे प्रिस्क्राइबर है, ओके। देन आफ्टर यू हैव टू फॉलो देम, ठीक है। आपका उसका कॉल रेगुलर करना है वहां पे, मतलब सेल बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो सेल दे रहे हैं उनका कंटिन्यूअसली वही फोकस करना है, जो कंटिन्यू था उसके बिल्कुल गैप नहीं रखना है। देन आपको उनसे और भी क्या पोटेंशियल वो दे सकते, मान लो 3 ब्रांड दिखते, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपनी पे उनका ट्रस्ट है। अब कंपनी का और एक ब्रांड भी पुश हो सकता है, तो फिर आपको एडिशनल प्रोडक्ट्स करना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्लान करना है। तो टूर प्लान जो होगा आपका, जो ऑलरेडी किसी एमआर ने पहले किया था, वो आपको पहले फॉलो करना है। सो 3 महीने आपको वही करना है जो पिछले एमआर में किया था, ठीक है। 3 मंथ्स आपको वही फॉलो करना है, तब आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि जो 10 लाख था वो 10 लाख ही रह गया, और 10 लाख से फिर आगे, क्योंकि अभी आपकी और डॉक्टर की और रिटेल की और होलसेल की बॉन्डिंग हो गई है। 3 महीने आपने वैसे ही काम किया एज पर द स्ट्रेटेजी, कंपनी प्रोफाइल, गिफ्ट दे दिए, सैंपल दे दिए, कंपनी डॉक्टर का मिस कॉल बिल्कुल नहीं हुआ, डॉक्टर को जो ब्रांड मैट्रिक्स था उसके अकॉर्डिंगली आपने काम किया। सो डेफिनेटली 3 मंथ्स में आपका वो सेल मेंटेन रहेगा। उसके आगे फिर आपको प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, वो फ्रॉम एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट ऐसे बढ़ाने। सो आपको इसके बाद क्या करना है, जैसे कि 200 की अगर लिस्ट होती है तो 200 के 200 प्रिस्क्राइबर नहीं होते, बहुत कम डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अगर नॉन कोर की देखा जाए, कभी कभार नॉन कोर 1000 भी बिजनेस देता है, ठीक है। या फिर कोई डॉक्टर का पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है लेकिन आपका प्रोडक्ट ही वो नहीं लिखता, आपके एरिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल डॉक्टर है लेकिन आपका प्रोडक्ट ही नहीं लिखता, ठीक है। तो
आप उसको प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब वो क्या, कन्वर्जन, डॉक्टर कन्वर्जन बढ़ाइए, नॉन प्रिस्क्राइबर जो है उनको बढ़ाना चाहिए। सो लाइकवाइज पहले आपको क्या करना होगा, जो ऑलरेडी सेल दे रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली विजिट करनी है और नॉन प्रिस्क्राइबर को प्रिस्क्राइबर में कन्वर्ट करना है, सो दैट आपका जो बेस है सेल का वो बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। अभी ये कंडीशन है परफॉर्म टेरिटरी की। अब एक उल्टी कंडीशन है नॉन परफॉर्म टेरिटरी की। आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पे बिल्कुल भी सेल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? वंदना आप बताएं। नो आइडिया सर। सिद्धि आप बताएं। सर वहाँ पे मेरे को जो बिल्कुल भी सीरीज नहीं दे रही है। ओके, सो मुझे पहले तो डॉक्टर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और मेरे को प्रोडक्ट बताना पड़ेगा ये प्लस मेरे को रेगुलरली विजिट करने पड़ेंगे कि उन्हें मतलब मेरा प्रोडक्ट पता चले और वो प्रिस्क्राइब करे। प्लस मेरे को अगेन आरसीपीए, मेरे को केमिस्ट से आरसीपीए करना पड़ेगा कि क्योंकि मेरे प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है मेरे को ये केस सिनेरियो। तो देखिए, परफॉर्म टेरिटरी क्यों नहीं करती? पहला तो आपका एमआर काम नहीं करता, दूसरा आपके प्रोडक्ट भी गलत हो सकते हैं, तीसरा एमआर काम नहीं करता, या फिर तीसरा ये भी है कि कंपनी की पॉलिसी गलत होती है। डॉक्टर को कमिटमेंट की और कमिटमेंट में अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, ओके, तो इमेज खराब होगी कंपनी की। तो इस तरीके से परफॉर्म टेरिटरी नहीं होती, टेरिटरी बहुत डाउन होती है। तो इसके लिए आपको पहले रीजन जानना है एक्चुअली क्या हो रहा है। एमआर काम नहीं कर रहा, कंपनी की पॉलिसी खराब है, या फिर डॉक्टर की कमिटमेंट के अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर, या फिर डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। डॉक्टर लिस्ट के डॉक्टर भी गलत है, आरसीपीए गलत किए है, कुछ भी हो सकता है। एक डेटा से पूरा मान लो आरसीपीए गलत है तो डॉक्टर भी गलत होगा, क्योंकि डॉक्टर को पूछ ही अलग दूसरा प्रोडक्ट करेगा तो डॉक्टर लिखेगा नहीं। ओके, तो होलसेल में तो स्टॉक तो वैसे ही पड़ा रहेगा। ओके, तो ये डिसरप्ट हो जाएगी पूरी चेन। ओके, सो हर एक चीज में ध्यान रहना। पहले डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, पहले अच्छे से डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करने से पहले आरसीपीए स्ट्रांग होगा, आरसीपीए करना है, उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड मैटर्स करना है, और फिर वो डॉक्टर देखना है कि ये पोटेंशियल कितना देता है, कोर है नॉन कोर है। इसके अकॉर्डिंगली फिर होलसेल में स्टॉक देखना है कि आपको होलसेल में मान लो 100 स्ट्रिप किसी के पड़े, तो एक प्रोडक्ट का 100 स्ट्रिप पड़ा है, तो आपको क्या करना है, वो लिक्विडेट करना है। क्योंकि जब कोई टेरिटरी परफॉर्म नहीं करती तो वहां के रिटेलर, वहां के होलसेलर के आपकी कनेक्शन अच्छे नहीं रहते, क्योंकि होलसेलर बताएगा कि ये स्टॉक इतने दिन से पड़ा, आप मूव ही नहीं कर रहे। तो पहले उनका अगर ट्रस्ट आपको बैठना है, मतलब इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां का स्टॉक लिक्विडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडेट कैसे होगा? डॉक्टर कन्वर्जन से। डॉक्टर कन्वर्ट होगा तो रिटेलर ऑर्डर करेगा और होलसेल को फिर नए ऑर्डर के लिए पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर कन्वर्जन, आरसीपीए स्ट्रॉन्ग, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी पे आपका कनेक्शन होना चाहिए अच्छा स्ट्रॉन्ग, एंड देन आफ्टर एट द सेम टाइम आपका जो ब्रांड मैट्रिक्स है वो परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सो लाइकवाइज ये चीजें आपको करनी है, आपके हाथ में ही सारा सोल्यूशन रहता है। वो पिछले एमआर में नहीं किया, इसके लिए वो टेरिटरी डाउन होती है। अदरवाइज टेरिटरी हर एक में हर डॉक्टर कुछ ना कुछ लिख ही सकता है, आपका फोकस ऐसे होना चाहिए। ओके, सो ये एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। गॉट इट? ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वंदन आपके लिए, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? स्टार्टिंग सर 15 and 20. ओके, ठीक है, 15 पे सेटिस्फाइड है आप? Yes sir, starting because with the work, this type work, and 50 and 20. Okay, Siddhi, what you say? So as a fresher, I don't expect much, but as time passes or as per my experience, I really want to depending upon your depending upon you to give me a better figure. So जनरल कितना सैलरी चल रहा है आपको मालूम है जनरली? Generally, so like MNCs में 25 to 30 देते हैं और 20 प्लस देते हैं, मतलब MNCs में। और
छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी, वो कितना देती है? 15 तक, 10 प्लस या 15 तक। देखिए एक्चुअली सैलरी में आपको दो सैलरी आती है। एक तो आपका बनता है जो ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अलग होता है जो आपका खर्चा होता है, दूसरा होता है बेसिक। ओके, तो दोनों पकड़ की सैलरी होती है। तो अभी के टाइम में 3.5 लाख टू 4 लाख पर एनम ये सैलरी चल रही है। ओके, एमआर के लिए। अगर आपको इससे भी कम मिलती है तो बहुत कम मिलती है, यू हैव टू टेल। ठीक है, कि चलिए ठीक है, अगर कंपनी की पॉलिसी अच्छी है तो कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट देगी, लेकिन कंपनी अगर नहीं है तो फिर आपको कम सैलरी में काम करना पड़ेगा। अब डिफरेंस, कम सैलरी में काम करना मतलब स्मॉल कंपनी और एमएनसी कंपनी में डिफरेंस क्या है? एमएनसी कंपनी में आपको चैलेंजेस आते हैं कि डॉक्टर लिस्ट पहले दिन से आपको प्रिपेयर करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। एमएनसी कंपनी में बनी बनाई लिस्ट होती है, आपको ब्रांड मैट्रिक्स फिक्स होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी होती है। सो यू हैव टू गो थ्रू टू द एमएनसी कंपनी। पहले एमएनसी कंपनी में जाना अच्छा रहेगा। और एज अ गर्ल दोनों को बता दूं कि अगर हॉस्पिटल्स कॉल होते हैं, यू शुड प्रेफर, बिकॉज हॉस्पिटल्स कॉल जो रहते हैं ना, वो 12 कॉल रहते हैं और हॉस्पिटल में बहुत जल्दी कॉल होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज बहुत ज्यादा डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, और अगर फील्ड वर्क रहेगा तो फिर फील्ड वर्क एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन। ओके, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, दैट विल बी बेटर, प्रोडक्ट कन्वर्जन फास्ट होता है। अगर जनरल होता है ना, तो जनरल में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है कि ये डॉक्टर भी लिखेगा, ये डॉक्टर लिखेगा। ओके, ये सिद्धि। सर मुझे यही डाउट था, मतलब इफ आई एम गोइंग फॉर जॉब, लाइक मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना है, तो मुझे वही था कि एज अ गर्ल मुझे क्या करना पड़ेगा। लाइक मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने बताया कि मोस्टली गर्ल्स को, लाइक जो मेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको हर विजिट्स करना पड़ता है। पर मेरी जो सीनियर है वो वही जो आपने बोला ना, डॉक्टर्स से कभी ना कभी कॉलिंग एंड ऑल होती है। तो मुझे सिर्फ जानना था कि कैसे 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 रोल होते हैं फीमेल के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेम लाइक मेल, डजंट डिफर। ओके, आपको सेल्स करना है, डॉक्टर को कॉल करना है, जो भी है वही करना है आपको। डिफरेंस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ चैलेंजेस है गर्ल्स के लिए, जैसे कि आपको इवनिंग कॉल्स रहते हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है जो आप समझ सकते हैं, कुछ एरिया सेफ नहीं नॉट रहता है, तो उस एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे कई कबार कॉल होता भी है, कुछ कॉल होता भी नहीं है। अदरवाइज टाइमिंग नहीं रहता है कि हमारे यहाँ जैसे कि मंथ एंड में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लेना पड़ता है, कि जब आप होलसेल के पास जाते हो तो होलसेल कुछ खाली नहीं बैठा होता। ठीक है, उसको टाइम लगता है, फिर वहां पे रुकना पड़ता है, सेकेंडरी क्लोजिंग लेना पड़ता है। तो उसके लिए वहां पे बताना पड़ता है, कुछ चीजें वो उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। रिटेल के पास जाएंगे पीओबी के लिए, वो राजी नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो वहां पे कन्विंस करना पड़ता है। डॉक्टर के यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, इवन मेल एमआर होने की वजह से वहां पे बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पे आपको खड़े भी रहना पड़ेगा। कई कबार आपको जैसे कि डॉक्टर भी कुछ बता सकता है कि आप डिटेलिंग अच्छे नहीं, ये कर नहीं, वो नहीं कर रहे। इवन आपके मैनेजर भी आपको कुछ बात कर सकते हैं। तो अगर आप सेंसिटिव में जैसे है, अगर किसी का बोलना आपको अच्छा नहीं लगता तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे बताएंगे, कोई भी आपको इनडायरेक्टली कुछ चीजें होती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैलेंजेस आपको फर्स्ट डे से आएंगी। कि पहला तो ये कि एनवायरनमेंट सारा मेल डोमिनेंट है, 95% मेल एमआर रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी बात नहीं है, अगर ऐसे अगर सोचेंगे तो आपको क्या सोचना है, आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको काम क्या करना है, आरसीपी करना है, डॉक्टर कॉल करना है, दैट्स इट, नथिंग मैटर फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, राइट। कुछ गॉसिपिंग करो, ये कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो डॉक्टर क्या कहाँ पे जा रहा है घूमने, वो डिस्ट्रीब्यूटर का मालूम है कि ये जो चीजें होती है, दैट इज गॉसिपिंग, that is not your part of business, right? So ये चीजें एमआर करता है, इसके लिए डाउनफॉल आता है। कोई भी एमआर जो रहता है ना, वो अगर फोकस करे उसके काम पे, so डजंट मैटर अगर वो गर्ल है या बॉय है, डजंट मैटर। आपके पास आपके सेल्स करने के लिए आपके पास वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम है, कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। ओके, तो एज अ गर्ल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि आपके कॉल अगर हॉस्पिटल कॉल रहते हैं, दैट विल बी बेटर, कि आपके इजी कॉल हो जाते हैं और डॉक्टर कनेक्शन भी अच्छे रहते हैं। मोस्टली कंपनी हॉस्पिटल कॉल ही देती है गर्ल्स के लिए। मतलब हॉस्पिटल कॉल में हमें मतलब डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे कैसे हॉस्पिटल, मान लो आपके यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा आपके एरिया में? सेंट्रल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, तो वहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं?
नहीं मालूम? बहुत बहुत हाँ सारे, ठीक है। तो 12 डॉक्टर तो इजीली हो जाएंगे, राइट? हाँ 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 हाँ। अंदर जाएंगे, 12 डॉक्टर कॉल करेंगे, बाहर आएंगे, कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम नहीं लगेगा ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। आपको 2-3 घंटे में 12 कॉल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओके ठीक है, तो ऐसे कॉल आपको दिए जाते गर्ल्स को स्पेशली, और जो ओके फील्ड के रहते हैं वो बॉयज को दिए जाते। लेकिन फिर भी फील्ड के अगर रहते तो मैं बताऊंगा कि आपको स्पेशलिटी वाइज चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, पेडियाट्रिशियन, या फिर कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, ओके, ऑन्कोलॉजी स्पेशल, मतलब कैंसर के डॉक्टर, लाइक ऐसे स्पेशलिटीज होंगी तो अच्छे। जनरल में थोड़ी बहुत ज्यादा आपको भागदौड़ होती है, क्योंकि जनरल के बहुत ज्यादा कंपटीशन है फिर। मतलब मान लो जनरल प्रैक्टिशनर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट भी उनको मिलते हैं, पीडियाट्रिक भी मिलते हैं, मतलब हर तरीके के पेशेंट को कवर करते हैं। उसके लिए वहां पे पोर्टफोलियो भी बड़ा होता है, okay. So you go through either specialty or hospital call, that will be more preferable and better for you, okay. Got it, both of you, Vandana, Siddhi? Yes, sir. ओके सर। Okay, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, जैसे कि, सर ओके, बताइए। सर आपने बताया नहीं वो सैलरी एक्सपेक्टेशन का आंसर कैसे दे। Okay, sorry. Okay, the answer should be, as a fresher, okay, I'm not demanding any particular salary, but I hope my company, our company will definitely monitor my skills, and accordingly my skills and knowledge with my qualification, they will offer the appropriate salary that will be satisfied by me and as well as organization, both way, okay. Okay, and इससे ही रिजेंबल एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंस इफ अदर कंपनी प्रोवाइड्स यू मोर सैलरी, कैन यू गो? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? वंदना, आप बताइए, आपका आंसर क्या रहेगा? कोई कंपनी आपको अच्छी सैलरी देती है तो क्या आप जाएंगी? ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, जब आपका सिलेक्शन होने का ऑलमोस्ट तय है, तब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नहीं सर, बिकॉज सर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे करेंगे, क्योंकि हम फ्रेशर रहेंगे, नॉलेज के लिए हमें एक ही कंपनी के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए हम नहीं जाएंगे वहाँ पे सर, यहीं पे ज्वाइन करेंगे। सिद्धि, आप बताइए। सर नो सर, मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है कि वर्क कल्चर कैसा है, ग्रोथ कैसी है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट चेंज। तो इस कंपनी में आप कितने साल रहोगे ये भी पूछ सकते हैं, क्या आंसर रहेगा? सर डिपेंडिंग अपॉन माय ग्रोथ एंड वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर कैसा है। ओके, देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस या करियर में। पहला ये है कि आपकी सैलरी, दूसरा ये कि आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स जो है वो काउंट होनी चाहिए, ओके। इफ एनी कंपनी काउंट योर स्किल एज वेल एज योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली दे आर प्रोवाइडिंग योर सैलरी, बिकॉज आपकी हर एक की जरूरत है, ओके। सो योर एक्सपेंडिचर आल्सो, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, करियर बनाना है, ओके। सो अकॉर्डिंगली आपके स्किल के अकॉर्डिंगली कंपनी अगर आउटपुट दे रही है, सो यू विल रिमेन एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपके स्किल अच्छे है, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, लेकिन कंपनी उतना आउटपुट नहीं दे रही है या फिर कंपनी उतना सैलरी नहीं दे रही है, सो यू शुड थिंक अबाउट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ओके। तो इस तरीके के आपके आंसर होना चाहिए। इफ कंपनी फुलफिल्स माय रिक्वायरमेंट्स, okay, as considering my needs, and also monitor my skills and product knowledge, and accordingly if they are providing me that platform, then definitely I will be here for longer period of time. Got it? Okay. Okay, so एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है कि, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप एक पूल में काम कर रहे हैं, ठीक है। कई कबार क्या होता है, इंडिविजुअल टारगेट दिया जाता है, कई कबार पूल में टारगेट दिया जाता है। भाई चार, आपकी सिटी में, मुंबई में एक एरिया है, जैसे आपका एरिया है, तो वहां पे 4 एमआर काम कर रहे हैं, तो चारों को मिला के एक टारगेट दिया जाएगा। मान लो 1 करोड़ का टारगेट है, तो 25 लाख का हर एक का टारगेट होगा। अब एक सिचुएशन है जहां पे आपका कलीग काम नहीं कर रहा और आप काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप टारगेट उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे इसको? I will report it to my manager, sir. यस, एनी अदर? डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे
हेल्प करेंगे सर, अपना टारगेट हेल्प कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट बिल्कुल करके सही। उसकी भी हेल्प करने की। बिल्कुल, पहले आपको हेल्प करना है, पहले देखना है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर काम कर रहा है तो उसको दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है, तो वो गाइड करना है। और अगर फिर भी वो कर नहीं रहा, इंटेंशनली कर नहीं रहा, सो यू हैव टू रिपोर्ट, ओके। और एक कंडीशन और उल्टी है, जैसे कि बहुत लोग काम कर लेकिन आप काम नहीं कर रहे, इन दैट केस व्हाट यू डू, करेंगे सर आप? मैं आप बताइए। सॉरी सर। देखिए, टेरिटरी में 4 लोग हैं, 3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे आप? सर हम काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे वो 3 कर रहे हैं वैसे हम भी करने के लिए ट्राई करेंगे सर, कि हमसे नहीं हो रहा तो हम उनसे सीखेंगे, मैं नहीं आ रहा सिद्धि, है आप प्लीज बताइए। हेल्प करो। राइट, राइट। व्हाट इज योर आंसर? सर सेम सर, मैं उनसे गाइडेंस लूंगी, उनकी हेल्प लूंगी कि कैसे वर्क किया जाए, कैसे सेल्स को इंक्रीज किया जाए। सो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर लिए, ओके, ऑलमोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर लिए। बाकी के प्रोडक्ट नॉलेज है वो फिर आप फार्माकोलॉजी थोड़ी सीख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए, हर एक सिस्टम को देख जानिए, वहाँ के डिसीज कौन से होते हैं वो जानिए, ओके। बाकी सिचुएशन क्वेश्चन कवर हो गए, एंड जो एचआर क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर कर लिए, ओके। सो आपको समझ में आ गई? इसमें कुछ क्वेरी है अब तक के पार्ट में? नो सर। ओके, तो कुछ बाकी स्लाइड्स है तो मैं ये शेयर करता हूँ, ओके। सबको दिख रहा है? दोनों को दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। ओके, तो फर्स्ट हमने देखिए, अप्लाई करने से पहले, कोई भी कंपनी को अप्लाई करने से पहले क्या करना है? चेक कंपनी एंड नो डिटेल्स, ओके। कोई भी कंपनी है, मान लो इंटास कंपनी है, ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, एबॉट है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज, बहुत सारी कंपनीज है। तो कंपनी कौन सी है वो देखिए, उसके डिटेल्स देखिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडर कौन है, क्या अचीवमेंट वगैरह की है, करंटली कुछ अचीवमेंट की है क्या, ये देखिए। चेक पोजीशन, पोजीशन भी चेक कीजिए। कई कबार ना मैनेजर के लिए जगह रहती है और आप कॉल करते हो और आपको पता चलता है कि नहीं, आपने गलत कॉल किया। तो देखिए, ये जॉब है ना, अगर बहुत बार ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा लिखा गया होगा, ठीक है। अगर मैनेजर पोस्ट, एरिया मैनेजर ऐसा लिखता है तो आप वहां पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज आपकी वो पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले पोजीशन भी देखिए, कंपनी की डिटेल्स चेक कीजिए, देन हेडक्वार्टर चेक कीजिए। बहुत बार क्या होता है, कई दूर की हेडक्वार्टर होती है, उसकी एड यहाँ पे लगाई गई, मान लो नागपुर, नासिक ऐसा एरिया है, उसकी हेडक्वार्टर उसका वैकेंसी वहां पे लगा है, तो आप कॉल करेंगे वहां पे, जाएंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन आपको फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये वैकेंसी तो हमारे मुंबई के लिए है ही नहीं, ठीक है, वो तो अलग के लिए। सो लाइकवाइज ये चीजें देखिए कि हेडक्वार्टर कौन सी है, डिवीजन कौन सी है, देखिए डिवीजन मतलब मैंने जैसे बताया कि स्पेशलाइजेशन, गायनेक की डिवीजन है, ऑर्थो की डिवीजन है, पेडियाट्रिक की डिवीजन है, ये जनरल प्रोडक्ट्स है, ये भी देखिए। देन कंपनी का कल्चर देखिए, उस एमआर को, कौन से भी उस कंपनी के एमआर को मिलिए और वहां पे कल्चर देख सकते हैं, कंपनी कैसी है, क्या है। ये तो देखिए, हर एक एमआर अलग अलग एंगल से बताएगा, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आप पूछ लीजिए। तो और जनरली मैनेजर के बारे में पूछिए कि जनरल मैनेजर अगर बीएससी वगैरह रहता है ना, तो वो आपको फार्माकोलॉजी में ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि उसको भी ज्यादा मालूम नहीं रहता। अगर लेकिन वो बी फार्म है, एम फार्म है, तो डेफिनेटली आप ये देखिए कि पूरे ड्रग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जानेगा, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, हाफ लाइफ, व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग अर्लियर, ये सारे क्वेश्चन आपको वो पूछेगा। देन आपको स्टेप क्या करनी है, देखिए आपको पता चला कि इस एरिया में वैकेंसी है, आपको क्या करेंगे नेक्स्ट, आपको कॉल करेंगे उस कंपनी को और अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेंगे। और जनरली जब कॉल करते हैं ना, तब एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं रिसेंटली ही मेरे एक रिलेटिव को एमआर जॉब चाहिए था, मैंने एक कंपनी में रिकमेंड किया और कॉल का टाइमिंग था 2 बजे, उसने कॉल किया 2:30 बजे, ठीक है। तो जो एरिया मैनेजर था उसको वो तो टाइम का बहुत ही क्रुशियल था, डिसिप्लिन, तो वहां पे उसने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसा भी होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसको मैंने एक जैसे कि मैंने बताया कि किसी को रिकमेंड किया मैंने, तो वो जब इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू के लिए जाने के बाद उसने ना कि शूज पहना था, ना कि टाई पहनी थी, ना कि शर्ट, मतलब जो वेल ड्रेस नहीं था। सो
immediately he is rejected because he knows everything सब चीजें मालूम थी, लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो आपको टाई, यू हैव आल्सो, इफ यू हैव टाई यू कैन वियर, अदरवाइज प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए, दोनों भी। शूज कंपलसरी होना चाहिए। हेयर्स जो है ना वो फॉर्मल होने चाहिए, एकदम मतलब स्टाइलिश है वो, बिल्कुल में दिखाई है, ठीक है। ओके, बिकॉज इट डजंट लुक प्रोफेशनल, ठीक है, डिसिप्लिन से जाना चाहिए। और एक फाइल ले लीजिए, एक फाइल में क्या कीजिए, आपका सीवी मतलब रिज्यूमे जो होता है उसका एक कॉपी और आपके सारे क्वालिफिकेशन की जेरोक्स, इवन एक्सपीरियंस की भी जेरोक्स, 2 सीवी लीजिए। एक सीवी उनको देना पड़ता है और एक सीवी आपके पास रहेगा, अगर चाहिए एक्स्ट्रा तो ले सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज ये आपको देखना है, पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए और टाइमिंग के आधे घंटे पहले चाहिए। अगर मान लो 1:30 बजे बोला, 1 बजे आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। ओके, बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको पूछा जाएगा व्हेन यू वांट टू ज्वाइन, आपका आंसर क्या रहेगा? Immediately. इमीडिएट, राइट। इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए एम्प्लॉय ये होती है, क्योंकि मान लो अगर बोलेंगे अब नहीं सर इस मंथ मुझे काम है, नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट डे से भी बोलेंगे तभी भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ओके, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट। ये स्लाइड समझ में आ गई आपको? Yes, sir. ये क्वेश्चन तो हमने किए। ओके, देन हाउ टू सर्च वैकेंसीज। एक तो आपके यहाँ पे होलसेल का मार्केट होता है, वहां पे जाइए, वहां पे ढेर सारे वैकेंसीज वहां पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे ही एमआर रहते हैं। आप सेकेंडरी प्राइमरी के लिए कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर जिस एरिया में, वहां पे बहुत सारे एमआर की वैकेंसीज लगाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई एमआर एक्सपीरियंस वाला मिलेगा, फ्रेशर वाला मिल ही जाएगा। तो वहां पे दवा बाजार में या फिर आपके फ्रेंड्स कलीग जो एमआर है वहां से आप पूछताछ कर सकते हैं, या फिर जॉब प्रोवाइडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप है। ओके, तो आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ओके, ओके, थैंक यू। तो वहां पे भी आपके ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन फेसबुक के भी ग्रुप है, लिंक्डइन के ग्रुप है, वहां पे कर सकते हैं, या फिर कंसल्टेंसी भी रहती है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनिशियल स्टेजेस पे, लेकिन अगर आपको चाहिए, ये डेडिकेटेडली चाहिए, तो कंसल्टेंसी के पास जॉब रहते हैं। ओके, कुछ फेसबुक के ग्रुप में यहाँ पे बता रहा हूँ। फार्मा मार्केटिंग इन इंडिया एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये ग्रुप है। फार्मा इंडिया है, फार्मा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी इंफॉर्मेशन, देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब फोरम बाय फार्मा गेट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे जॉब ग्रुप है। ओके, ये सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन हो जाइए, वहां पे कंटिन्यूअसली आपको वैकेंसी मिलेगी। ओके, सो ये स्लाइड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सैलरी स्लिप आपकी ऐसी रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी है, फिर अलाउंसेस है, वेरियस अलाउंस। ओके, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल, हाउस रेंट, फूड अलाउंस, टैक्स जो वगैरह रहते हैं, तो ये आपको रहेगा जनरली। अब ये है कि हाउ टू वर्क व्हेन लो डिमांड ऑफ मेडिसिन इन मार्केट। मान लो आपके एरिया में जो मेडिसिन जाती है, या फिर सिर्फ सीजन रहता है ना, लोग बीमार कब ज्यादा पड़ते हैं, कौन से सीजन में ज्यादा बीमार पड़ते हैं? स्थिति आप बताइए, कौन से सीजन में ज्यादा बीमार पड़ते हैं? रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर? Winter season, sir. विंटर सीजन। वंदना आप बताइए। Sorry, sir. कौन से सीजन में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं? रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन? Rainy season. Rainy season. राइट, रेनी सीजन में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। विंटर सीजन सिद्धि ये हेल्दी सीजन रहता है। ओके, ठंडी में बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं, इवन समर में भी कम होता है। लेकिन रेनी में क्या होता है, बारिश होती है, इन्फेक्शन फैलता है, और बहुत सारे लोगों को ये वायरल डिसीज वगैरह होते हैं। ओके, सो रेनी सीजन जनरली जो जून से लेकर सितंबर तक जो मंथ है ना, वहां पे आपका सेल हर एक कंपनी का अच्छा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद भी मान लो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या है, फेस्टिवल सीजन बहुत रहते हैं, जैसे दिवाली आ गई, ओके, दशहरा है, ओके, अभी मकर संक्रांति आ गई। ओके, सो वहां पे क्या, लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते इस सीजन में। ठीक है, लोग हेल्दी, या फिर एक एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। ओके, सो यहाँ पे सेल आपका डाउन होता है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे पेशेंट नहीं है, तो आप कहाँ से सेल करेंगे? अब इस समय में क्या करना है, इस समय में कैसे सेल करेंगे, ये मैं यहाँ पे स्लाइड में बता रहा हूँ। ओके, पहले ये कि जो स्लैक सीजन है वो देखिए। स्लैक सीजन आपको मालूम है आने वाला है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को भी मालूम है, तो कंपनी क्या करती है, स्कीम्स लॉन्च करती है।
10+1, 10 स्ट्रिप पे 1 स्ट्रिप फ्री, 10 स्ट्रिप पे 2 स्ट्रिप फ्री, ऐसे स्कीम्स लॉन्च करती है। सो उसका बेनिफिट लीजिए, एमआर को इसका बेनिफिट लेना चाहिए, वो आपको रिटेलर को बताइए, इवन डॉक्टर को भी बताएंगे सर इसको स्कीम आ गई है, और आप अगर उनका खुद का मेडिकल स्टोर है तो वो आप उनको बोल सकते हैं, अदरवाइज रिटेलर को बोल सकते हैं स्कीम आ गई आप ले सकते हैं। और डॉक्टर भी ज्यादा टाइम कॉल आपको दे देंगे, आप पहले 2 मिनट देते थे, अभी 3 मिनट 4 मिनट में दे देंगे, जिससे आपकी और उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। इवन रिटेलर भी उतना टाइम देंगे। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ आप गॉसिपिंग कीजिए, फालतू बड़बड़ कीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको एग्जैक्टली वही कॉल तो करना है। साथ में अगर कुछ डिमांड या रिक्वायरमेंट्स या कुछ होती है तो ये आपको बताएंगे डॉक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको दे देंगे डॉक्टर, ओके। Then spend more time with doctor, chemist and wholesale. Okay, try to connect those call which are difficult, especially in hospital. मान लो कोई हॉस्पिटल में आपकी कॉल बिल्कुल नहीं होते, कोई डॉक्टर कॉल ही नहीं देता था, आपको बहुत मिस कॉल हो गए, तो वो कॉल यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट कम रहते हैं तो डॉक्टर का कॉल इजीली हो जाएगा। देन कुछ हॉस्पिटल है जो आईपीडी में, आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो एडमिट होते हैं ना वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब और ओपीडी क्या रहती है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट आते हैं सर्दी बुखार की दवाई लिखते हैं और घर जाते हैं, वो एडमिट नहीं होते, और लेकिन जो एडमिट होते हैं वो आईपीडी में आएंगे। तो आईपीडी के जो हॉस्पिटल है वहां पे क्या कोई कहाँ पे आईपीडी अच्छी चल रही है वहां पे जाइए, इंजेक्शन की वगैरह आपकी ऑर्डर मिल जाएगी। सो इस तरीके से आपका सेल एटलीस्ट बूस्ट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गई ये स्लाइड? ओके, सो दैट्स इट। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कुछ सजेशन होगा तो बताइए। ओके, सो थ्रू आउट आपने कोर्स कंप्लीट किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। ओके, आपको आज थोड़ी देर में मैं आपको सर्टिफिकेट भी शेयर कर दूंगा। ओके, सर्टिफिकेट्स। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, फीडबैक रिगार्डिंग आवर इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू आप दोनों का? हाँ, लाइक मेरा ये दोनों का बताऊंगा। पहले वंदना आपका बताऊंगा कि आपको क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है थोड़ी बहुत। आप इस चीज को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, डायरेक्टली आपने नहीं बोलना ये नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट आपने ट्राई करना चाहिए। यू शुडंट गिव अप, ओके, क्योंकि गिव अप होता है तब मार्केटिंग में बिल्कुल भी जगह नहीं, क्योंकि होता ये कि बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप अभी भी हार मानेंगे तो सेल कैसे करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी आपको ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा है मुझे लगता है, बट थियोरेटिकल थोड़ा सा कम, ठीक है। फार्माकोलॉजी रिलेटेड या और भी कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपका भी कंफ्यूजन होता है सिचुएशन क्वेश्चंस वगैरह, राइट। सो लेकिन ओवरऑल आपको मालूम है एक्चुअली एमआर के हैं, ओके। सो अगर मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 100 आपकी बात करेंगे तो आपको 60 तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, 60 मार्क्स यू कैन गेट इट, ओके। सो लेकिन 40 मार्क्स इसलिए लेस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट। आपको जो थरो नॉलेज यहाँ पे मैंने बताया, ये सारे स्लाइड्स थ्रू जाइए और वहां पे आपको गेन कर सकते हैं, ओके। वंदना, दैट इज फॉर यू, एंड सिद्धि फॉर यू, यू आर डन वेरी गुड, ओके। आपने ये सब अच्छा आंसर दे दिया, बट सम ऑफ यू डोंट गेट, ओके। कुछ सवाल आपको भी थोड़ी कंफ्यूजन में लग रहे थे, ओके। बट स्टिल यस, यू आर कॉन्फिडेंट टू गिव इनफ कॉन्फिडेंस, जो जॉब के लिए चाहिए वो है। इससे आगे भी अगर आपका बढ़ता है, सो दैट विल बी मोर बेटर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आई विल गिव यू 85, ओके। So that will be better for you, okay. So both of you become A grade, आप दोनों को A grade मिल जाएगा और आपके सर्टिफिकेट में भी मिल जाएगा, okay. थैंक यू। Yes, yes, okay. So one more thing, कुछ सजेशन आपको इस हमारे कोर्स के लिए चाहिए, कुछ चीजें और ऐड करने की जरूरत है, कुछ ऐसा है आपको जरूरत है वो मैंने ऐड नहीं किया है या सिखाया नहीं? नो सर, एवरीथिंग वाज गुड, थैंक यू सर। ओके, और एक बात, मतलब ये रिक्वेस्ट ही है, एक फीडबैक होता है हमारा कोर्स के लिए, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, हमारे ग्रुप पे दीजिए, आपका नाम, आपका रोल नंबर, इवन आपका फोटो होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फीडबैक में हमारे वेबसाइट पे पोस्ट करता हूँ। एंड देन आफ्टर यू कैन राइट योर रिव्यू, ओके, रिव्यू बोल सकते हैं आप इसको, टू टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो, तो आप ये भी दे सकते हैं, ओके। वंदना, सिद्धि, Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ओके।
So thank you very much for your joining. Okay, and wish you all the best for your bright future. Any query, Thank you. कुछ भी query होती है, you can ask me. Okay, in group, in WhatsApp, even you can call. No problem. Okay. Thank you, sir. Yeah. Bye.